Hello and welcome to Nirmal Bang, ladies and gentlemen. I'm Hiral Daria. We have with us Kunal Shah, Head of Commodities Research, joining in. Kunal, welcome to the show. Clearly, if you see in terms of where the dollar index is concerned, it's struggling for direction around levels of around 92. What's the sense that you pick up? Because clearly you have the US consumer confidence that surprised us on the upside with regards to the June month. Next, you have the housing data, which is expected as well as the ADP report. Hmm. Okay. So first of all, I have been getting a lot of calls from yesterday, today. Most of the people are really confused about the trend in the market. So we get this period where we are not clear on what is going to happen. But I worked on it today, 2 hours, 3 hours. I was after it, and now I've come to a conclusion what is going to happen in next 2 3 days. So irrespective if I go right or wrong, I've tried to develop a view, because I what we have been doing before last 15 20 days, the markets were really directional. So it was bullish, then it went down, and now it is now in a stuck in a range where sometimes it moves up, sometimes it go down. It is very difficult to get a trend. So first of all, I will focus on what is happening on macro front, and then what is the trend of dollar and what is the trend of commodity. So just see, today I'm going to explain you what has happened in past and what can happen now. So when in 2008 Lehman brother crisis took place, at that time Federal Reserve's balance sheet was $1 trillion, and it expanded from $1 trillion to $3 trillion by 2013. So after 2013, they decided that this cannot go on, and they started to taper. And when they taper, gold, silver, crude, metals, everything corrected, and it slided. And once market adjusted with the tapering, there was a bounce back, and again it went down gradually. So right now, whatever we are seeing in commodity market, in equity markets, it is mainly liquidity driven. Why liquidity driven? The Federal Reserve balance sheet, which was $3 trillion in 2013, is today at standing at $8 trillion. So the people who are attending in Hindi, 2008 से 2008-9 से 2013 तक फेडरल रिजर्व का बैलेंस शीट $1 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन तक गया था. और जब $3 ट्रिलियन पे पहुंचा, तब फेडरल रिजर्व ने बोला कि अभी हम लोग ये बॉन्ड परचेस चालू नहीं रख सकते हैं, हम लोग को ये बंद करना पड़ेगा, बिकॉज इकोनॉमी की हालत अच्छी हो रही है. सो जब उन्होंने ये किया, तब सभी कमोडिटी, सभी चीज़ के प्राइसेस नीचे आना चालू हो गए. सो अभी फिलहाल ये $3 ट्रिलियन से 2013 में अभी पहुंच चुका है $8 ट्रिलियन. सो 140% ऑफ यूएस जीडीपी इज नाउ पूरा डेट में चल रहा है. तो अभी आगे जाके थीम क्या है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और लेबर मार्केट स्ट्रांग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, दैट इज गोइंग टू कम ऑफ द मार्केट. So the extra liquidity which is floating in the system, $120 billion of bond purchase every month. So this number will come down. So out of it, तो इसके कारण होने क्या वाला है आगे जाके, ये टेपरिंग 1 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने बाद होगा, होगा, होगा और 100% होगा. और जब ये होगा, तब हर एक चीज में करेक्शन आने वाला है. पर तब तक क्या, दैट इज व्हाट इज अवर व्यू. तब तक क्या करना है? सो बेसिकली हमको बहुत ऊपर में, अभी ये मार्केट रेंज बाउंड मार्केट होने वाला है. ऐसा मार्केट नहीं है कि कॉपर ₹900 हो जाएगा या कॉपर ₹600 हो जाएगा. दो में से कुछ नहीं होने वाला है. सो दिस इज गोइंग टू बी द मार्केट वे यू try to get the impulse, or you play as per that. So for example, we'll start first with gold. So हमको मालूम है कि दिस फ्राइडे देयर इज अ जॉब नंबर, और आज एडीपी एम्प्लॉयमेंट की नंबर आने वाला है. सो एडीपी एम्प्लॉयमेंट इफ एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आता है, तो गोल्ड के प्राइसेस नीचे जाने वाला है. पर ऑलरेडी गोल्ड नीचे चला गया है. सो जब डेटा आता है, तब वो टाइम पे आप शॉर्ट मत कीजिए. डेटा अगर गोल्ड के लिए बेरिश है, तो थोड़ा गोल्ड नीचे जाएगा और बाउंस बैक होता है, वो बाउंस बैक में सेल कीजिए. सेल गोल्ड ऑन द बाउंस बैक, नॉट एट मार्केट, बिकॉज एट फ्राइडे ये डेटा आने के पहले ये पूरा मूव डिस्काउंट हो जाएगा. आपका डॉलर इंडेक्स 92 के ऊपर ट्रेड कर रहा है. तो गोल्ड सिल्वर में मैं बहुत क्लियर हूँ, स्पाइक पे गोल्ड और सिल्वर
बेच के काम करना है जब तक ये यूएस के जॉब के डेटा नहीं आ जाते हैं. सो आई एम नॉट थिंकिंग, मैं आप लोग को एकदम क्लैरिटी से बता रहा हूँ कि अभी फिलहाल आपको गोल्ड और सिल्वर में तो उछाले पे बेच के काम करना चाहिए, बराबर है. सो लेवल्स, आई गिव यू द लेवल्स आल्सो वेयर यू कैन गो शॉर्ट और लॉन्ग. सो एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न, आप 46,000 अराउंड 600-650 के बीच में गोल्ड शॉर्ट कर सकते हो, और स्टॉप लॉस लगाओ उसका आप 880 890 का, और फिर से 46,350 आता है वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो. सिल्वर आप शॉर्ट कर सकते हो अराउंड 67,600 के आसपास, अभी फिलहाल वही रेट चल रहा है. सो वहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगाओ उसका आप 68,000 का, और 66,800 के लेवल्स के आसपास आप सिल्वर कवर कर सकते हो. सो बोथ गोल्ड एंड सिल्वर, आई एम क्लियर, view is sell on rallies till Right. the US job data is coming. Right. But And Kunal, हाँ, for gold, there's a question coming in. Will the US GDP also help us decide the gold price trend for the week? see, US GDP is not going to be the major factor, because सबको मालूम है, everyone knows that because there was a lockdown, because there was a crisis, so US GDP is going to remain bad. So US GDP is not the key factor. In fact, I am expecting a good revival in the GDP in US. So मेरा view 100% gold और silver में sell on rallies का है. सेकेंड आता है मेटल्स. मेटल्स में मेरा व्यू शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है बिकॉज ऑफ व्हाट हैपन इन रशिया. आप समझिए, रशिया इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ निकल, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ स्टील. सो ये सब, जैसे रशिया की गवर्नमेंट नेक्स्ट मंथ से एक्सपोर्ट टैक्स लगाने वाली है रशिया पे. सो रशिया से जो माल इंडिया, यूएस, यूरोप जाता था वो बंद हो जाएगा, बिकॉज 15% अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है तो वो लोग एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे. सो इतना ग्लोबल मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होगा, और रशिया में उतना प्राइस का ग्लट क्रिएट होगा. सो उसके कारण मुझे लग रहा है मेटल्स में थोड़ा अपसाइड आ सकता है. ऊपर से यूएस के डेटा अच्छा आ रहा है. सो कॉपर अराउंड 722 के आसपास आप बाई करो, ऊपर में 728 29. निकल, जो मेरा सबसे फेवरेट पिक है, जो रशिया का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रशिया इन निकल. सो 15% टैक्स आता है, तो निकल की मार्केट सप्लाई वाइज ऑलरेडी टाइट है. सो निकल ऑल्सो लुक्स वेरी अट्रैक्टिव टू मी. आप 1375 पे निकल बाई कीजिए, 1395 1400 के टारगेट लीजिए, और 1360 पे आप स्टॉप लॉस लगाइए. लेड, भावना हैज कॉल्ड मी टुडे टू आस्क अबाउट लेड. लेड में मैंने चेक किया, कोई न्यूज़ नहीं है, देयर इज नो न्यूज़. पर होता क्या है मेटल्स में, जब दूसरे मेटल्स रन अप कर जाते हैं और कोई मेटल रन नहीं किया है, तो अभी मैं क्या बोलूँगा, अभी आपका फॉर एग्जांपल आप कोई सेक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे लेटेस्ट से बैंकिंग सेक्टर, तो सभी बैंक बढ़ गई है पर एक पर्टिकुलर बैंक बढ़ी नहीं है. सो दैट वाज द केस विद लेड. तो लेड में शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश बाइंग आ रही है. 184 तक भावना लेड जा सकता है. सो आप अगर शॉर्ट पोजीशन है तो एक बार 179 7850 कोई भी लेवल्स के आसपास आप थोड़ा वहां से एग्जिट लीजिए. सब दूसरे मेटल्स में बाइंग आने के कारण लेड को भी थोड़ा बेनिफिट मिलेगा ऐसा लग रहा है. 3-4 रुपए की अपसाइड आ सकती है लेड में. when you talk about aluminum also looks good because of what is happening in Russia. 199 levels to buy, 202 203 book your profit, 190 790 keep a stop loss. So that's it for metals. When it comes to oil and natural gas, so सबसे पहले natural gas में मैं आपको brief करूँगा. Natural gas में global natural gas market has become very tight, but we are focusing on the US markets, or because of the extreme heat in US, all the inventory of natural gas is started to get depleted. So फिलहाल natural gas के prices ज़्यादा नीचे नहीं आने वाले हैं. आप natural gas around 274 273 के बीच में बाई कर सकते हैं. वो 70 का स्टॉप लॉस रखिए, और नीचे और अपसाइड में 280 282 में प्रॉफिट बुक कीजिए. क्रूड की बात करेंगे, ओपेक मीटिंग मुझे नहीं मालूम है क्या आने वाला है, बट एज ऑफ नाउ 5480 में बाई करके 55 30 40 के टारगेट्स रखिए, और 5420 का स्टॉप लॉस लगाइए. सो बाई एट डिप्स फॉर क्रूड, बाई एट डिप्स फॉर मेटल्स, एंड एज फार एज गोल्ड एंड सिल्वर सेल द रैलीज. जो आज एडीपी एम्प्लॉयमेंट के शाम को जो डेटा आएंगे वो नंबर बहुत अच्छे हैं, तो मार्केट बेच देंगे.
वो नंबर्स थोड़े ही बेटर है, एक्सपेक्टेशन से कम है, तो एक स्पाइक आएगी, वहाँ पे बेचेंगे. So I think I will try to clarify the view today. And any query or anything which happens during evening session, you guys can reach me. Right, absolutely. Thank you, Kunal, so much for giving us so much clarification and clarity with regards to how markets could be moving from here on based on the data. Thank you, participants, for joining in as well. And as Kunal said, you could reach out to him on WhatsApp or via email if you have any further queries. Thank you so much. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.